ආයිබෝවන් නමස්තේ. නොනවති ගලා යන මේ ජීවන ගංගාවේ බොහෝ පෞරුෂයන් ලෝකයට විවිධ අයුරින් ඉමහත් ලෙස බලපෑම් කරලා තියෙනවා. මිනිසාට මිනිස් ජීවිතයට නව මානයක් ලබා දෙන්න ඔවුන් කලින් කල ලෝකයේ පහළ වෙනවා. ඇත්තටම මානුෂිකත්වය කෙරෙහි ඔවුන් තුළ ඇති ප්‍රේමය අසීමාන්තිකයි. ඉතින් ඒ වගේම මේ මහර්ෂි ගජ් අරවින්ද් එතුමා තමන්ගේ මානුෂික ප්‍රේමය තුළින් මුළු ජීවිතයම මිනිසාට සේවය කිරීම සඳහා කැප කරලා තියෙනවා. ස්වයං සංවර්ධනය තුළින් ජාතිය සංවර්ධනය කිරීමේ සංකල්පය එතුමාගේ නිර්මාණයක්. සාමය ඇති කිරීම අභ්‍යන්තර සංවර්ධනයනුත් සෞභාග්‍ය බාහිර සංවර්ධනයනුත් ඇති කරලීම උදෙසා ඔහු නිර්මාණය කරලා තියෙනවා මහර්ෂි අරවින්ද් පදනම. ඒ වගේම මනුෂ්‍ය ජාතීන් පිළිබඳ විද්‍යා පදනම එත්නික් සයන්ස් ෆවුන්ඩේෂන් මේ පදනම් දෙකේම නිර්මාතෘ ඔහුයි. ඉතින් අද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා මහර්ෂි අරවින්ද්තුමා. ඒ වගේම මෙම ෆවුන්ඩේෂන් එකේ අධ්‍යක්ෂක अनुराग चाबड़ा महात्म्या. नमस्ते. सबसे पहले आप दोनों को श्रीलंका में स्वागत करते हैं. और कैसे है श्रीलंका में आपका अनुभव कैसे है? श्रीलंका में ඔබේ අත්දැකීම් කොහොමද? ये पहली बार आप श्रीलंका में आपका पहली बार या इससे पहले भी यहाँ? श्रीलंका में 2011 से यहाँ शुरुआत की है. अच्छा. और श्रीलंका की जो संस्कृति है बहुत ही अच्छी है. जो भारत और श्रीलंका एक ही संस्कृति है. यहाँ प्रेम, मैत्री, करुणा यह सभी में मिलता है, सभी में देखने को मिलता है. ये संस्कृति, नेचर जो भी मानव के भीतर छुपा है. इसलिए श्रीलंका में आते हुए इतना अनुभव हुआ है कि ये अपना देश है, ये अपनापन है. ऐसा लगता है. එතුමා කියනවා 2011 ඉඳලා ඔවුන් මේ ශ්‍රී ලංකාවට යන වෙනවා. ඇත්තටම ಭಾರತೀಯ සංස්කෘතිය සහ ශ්‍රී ලංකා සංස්කෘතිය අතර ඊතරම් වෙනසක් නැහැ. බොහෝ දුරට සමානයි. ඔවුන් කියනවා ඔවුන්ට ශ්‍රී ලංකාව තමන්ගේම රට විදිහට දැනුණ බව. මෙහි ජනතාව ඔවුන්ට ඔවුන්ගේම जनता विधिයට දැනුණා කියලා. अरविंद जी, मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहती हूँ आपका फाउंडेशन के बारे में. महर्षि अरविंद फाउंडेशन ये क्या है? इसकी शुरुआत कब हुई? महर्षि अरविंद फाउंडेशन इसकी शुरुआत के पहले इस कार्य की शुरुआत 1967 में हुई, यानी 67 में. මහර්ෂි අරවින්ද් පදනම. ඇත්තටම මේ පදනම ආරම්භයට පෙර මේ සංකල්පය ආරම්භ වෙලා තියෙනවා 1967. අපි එතුමාගෙන් දැනගමු මොකද්ද මේ පදනම මෙහි අරමුණ කුමක්ද කියලා. उसके बाद जो कार्य पद्धति की जो शुरुआत हुई, जो प्रैक्टिकली वहाँ से धीरे धीरे शुरुआत हुई. फिर इसके यानी 2010 में फाउंडेशन की स्थापना करते हुए, महर्षि अरविंद फाउंडेशन इसकी स्थापना करते हुए फिर इसको प्रैक्टिकली रूप में जो किया था उसको फिर दुनिया के सामने, जो लोगों के सामने फिर लाने की कोशिश की. 2010 වසර තමයි මෙය ආරම්භ වෙන්නේ. ඊට පසු ඔවුන් ලෝකයට මෙය निरावरणය කරනවා. अरविंद जी, और मैं पूछना चाहती हूँ इसका ब्रांचेस और देशों में है क्या? මෙහි ශාඛාවන් වෙනත් රටවලත් තිබෙනවද කියලා අපි එතුමාගෙන් අහනවා. इसकी जो शाखा है, जो कार्य शुरू है, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मलेशिया. इसमें जो ऑनलाइन जो एजुकेशन है दूसरे देशों में भी शुरू है. जो ऑनलाइन एजुकेशन शुरू रहता है और भारत में भी इसका कार्य. नेपालය, භූතාන්, මැලේසියා, බංග්ලාදේශ්, ශ්‍රී ලංකාවාදී රටවල මෙහි ශාඛාවන් පැතිර පවතිනවා. ඊට අමතරව මේ ඔන්ලයින් මාධ්‍ය ඔස්සේ බටහිර රටවලත්
मेरे ख्याल से पाश्चात्य देशों में भी ऑनलाइन शिक्षण चलते हैं බටහිර රටවල් दक्वा उनके මෙම पदनम පැතිර ගොස් තියෙනවා. मैं पूछना चाहती हूँ आपने ये श्रीलंका को क्यों सेंटर बनाया? ඔවුන් ශ්‍රී ලංකාව මෙහි ප්‍රධාන මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කළා තියෙනවා. ඉතින් මම කැමති ඇයි මෙච්චර රටවල් තියෙද්දි ශ්‍රී ලංකාවට මේ තැන දුන්නේ කියලා දැනගන්න. यहाँ अपनापन है, अपनी संस्कृति है, अपना कल्चर है, मानवता है, मैत्री की भावना है, करुणा है। हम एक दूसरे को समझते हैं। हमारे लिए श्रीलंका और भारत कोई अलग नहीं है। अच्छा. हमारे लिए भारत और श्रीलंका एक ही है, क्योंकि ह्यूमैनिटी जो भारत में है वही श्रीलंका में है, जो श्रीलंका में है वो भारत में है। इसलिए मुझे और हमें सभी को श्रीलंका अलग नहीं लगा, ये अपनापन ही है. ඔව් ඇත්තට මං හිතනවා මේ ඔහු කියපු දේ ඔබට තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඔහු කියනවා මේ තමන්ගේ කම අපනාපන් කියන්නේ තමන්ගේ කම. ඔහුට මෙහි තමන්ගේ කම දැනිලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමන්ගේ ජනතාව අර අපි කලින් කතා කරා වගේ සංස්කෘතිය ආගම ඇත්තටම බොහෝ සමානකමක් දක්වනවා. ඉතින් මෙන්න මේ හේතුන් නිසා තමයි ඔවුන් මේ ප්‍රධාන මධ්‍යස්ථානයක් විදියට ශ්‍රී ලංකාව තෝරගෙන තියෙන්නේ. अब मैं पूछना चाहती हूँ आपका जो फाउंडेशन है ना उसका उद्देश्य क्या है? फाउंडेशन का जो उद्देश्य है, सभी जीव जंतु प्राणी पशु पक्षी और वनस्पति मानव का सभी का कल्याण हो, ये सबसे बड़ा මේ පදනමේ අරමුණ සියලුම ජීවීන් කියලා කිව්වහම මිනිසා පමණක් නෙවෙයි පශු පක්ෂීන් ඒ වගේම අපේ මේ වනස්පතියා කියන්නේ ගස්වැල් වෘක්ෂලතා ආදී මේ සියලුම ජීවීන්ට යහපතක් කිරීමේ අරමුණෙන් තමයි මේ පදනම පිහිටවලා තියෙන්නේ. सिद्ध कृषि, अब हम बात करेंगे सिद्ध कृषि के बारे में. अनुराग जी, ये सिद्ध कृषि क्या है? सिद्ध कृषि एक परंपरागत जो है कृषि का विज्ञान है, जो हमारे जो ऋषि हुए उन्होंने रिसर्च के द्वारा इसको खोजा था और समाज के विकास के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए ये पूरी एक पद्धति है उसका निर्माण किया था. कृषि का मतलब में एग्रीकल्चर. ඇත්තටම අපි දැන් කතා කරන්නේ මේ සිද්ධ කෘෂි. අපි සිංහලෙන් කෘෂි කියලා කියනවා. හින්දියෙන් කෘෂි කියලා තමයි කියන්නේ. මේ කෘෂි නැත්තම් කෘෂි කර්මාන්තය ඔවුන් පවසන විදිහට මේ ඍෂිවරුන්ගේ නිර්මාණයක්. මානවයාගේ යහපත පිණිස තමයි මේ කෘෂි කර්මාන්තය. ඇත්තටම දැන් ಭಾರತය ශ්‍රී ලංකාව වගේ කෘෂි කාර්මික රටවල්. ඉතින් ඈත අතීතයේ සිටම මේ කෘෂි කාර්මික ජීවන රටාව අපිට හුරුයි. ඔවුන්ගේ අදහසට අනුව මේ ඍෂිවරුන්ගෙන් තමයි කෘෂි කර්මාන්තය අපිට ලැබිලා තියෙන්නේ. नेचर के विज्ञान के ऊपर आधारित है ये. और जो नेचर में हम जो एनर्जी है उसको लेते हुए और जो नेचुरल वे से हम ये सारी चीज़ें जो है जो इनपुट जाता है खाद है या फिर दवाइयाँ जो लगती है प्लांट के लिए, वो सब नेचर से होता हो, ये उसी विज्ञान के ऊपर आधारित है. एनर्जी है जैसे साउंड है और लाइट है, कॉस्मिक विश्व शक्ति है, हीट है, इन सबको लेते हुए ये सिद्ध कृषि कार्य करती है और जो आज की समस्या है उसके लिए ये कार्य करती है. විශ්ව ශක්තිය සෝබාදහමේ ශක්තිය ඇසුරින් තමයි මේ හැමදේම පවතින්නේ. ඇත්තට මේ මානවයාගේ යහපත උදෙසා විශ්ව ශක්තිය එනර්ජි එක යොදා ගැනීම තමයි ඔවුන්ගේ අරමුණ. इसके अंतर्गत आते हैं बैलेंस्ड एग्रीकल्चर और बैलेंस्ड एनिमल हेल्थ. आप बता सकते हैं? देखिए, कृषि जो है वो मूल है. किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे जो बेसिक चीज़ है वो कृषि आता है. वहीं से संस्कृति की भी शुरुआत होती है कृषि से. भारत है, श्रीलंका है, ये सारे कृषि के ऊपर आधारित देश है. तो कृषि यदि संतुलित होगी, जो आपका बेस है हमारा जिस पे हम खड़े हैं वो बैलेंस होता है, तो सारी चीज़ें, समाज भी बैलेंस होता है. और जो वन्य जो बताया कि पशु पक्षी हैं, ये सबका आधार कृषि है. तो जब सब में बैलेंस आता है तब पूरी तरह एक राष्ट्र का बैलेंस उससे निर्माण होता है. तो
ये उसका उद्देश्य है सिद्धा कृषि का, कि सबसे पहले हमारी कृषि संतुलित हो और फिर उसके ऊपर सभी जो है इसमें समाज का संतुलन समाज का संतुलन और कृषि के पर्यावरण ऊपर और पर्यावरण संतुलन, दोनों संतुलन रहेंगे, वही सिद्धा कृषि का भी। ඔව්. සිද්ධ කෘෂි කියන්නේ මේ කෘෂිකර්මාන්තයේ සමබරභාවය. කෘෂි සන්තුලන් කියලා තමයි හින්දියෙන් කියන්නේ කෘෂිකර්මාන්තයේ සමබරභාවය. ඇත්තටම මේ කෘෂිකර්මාන්තය ඔස්සේ තමයි සංස්කෘතිය නිර්මාණය වෙන්නේ. හින්දියෙන් කියන්නේ සංස්කෘති කියලා. සංස්කෘතිය නිර්මාණය වෙන්නේ. කෘෂිකර්මාන්තය සමබර වුණොත් තමයි සමාජය සමබර වෙන්නේ. ඇත්තටම මේ කෘෂිකර්මාන්තයට පශු පක්ෂීනුත් සම්බන්ධයි. මේ හැම දෙයකම සමබරභාවය අපි සමාජයේ සමබරභාවයට බලපානවා. बैलेंस्ड फैमिली कल्चर, कुटुंब संस्कृतिय. बैलेंस फैमिली कल्चर क्या है? जो कृषि से है, उसके बाद उसी के ऊपर एक किसान है जो कार्य करता है वहाँ पे। संस्कृति जो है वो किसी भी देश की हम देखें तो वो उस देश के घर को यदि हम देखें तो वहाँ से शुरू होती है, जो फैमिली है। हाँ, तो वहीं से जो हम राष्ट्र कहते हैं, जो राष्ट्र है पूरा व्यक्तियों से तैयार होता है, तो उसकी जो नर्सरी कह लें तो वो फैमिली है यहाँ पे। तो कल्चर जब बैलेंस, एग्रीकल्चर बैलेंस होगा तो हमारा कल्चर भी बैलेंस होगा, हमारा फैमिली बैलेंस होगा, समाज का संतुलन होगा, राष्ट्र का संतुलन होगा, और फिर पूरा का पूरा जो वैश्विक संतुलन उसी के ऊपर आधारित है। ඔව්. ඇත්තටම දැන් අපි ආරම්භ කරේ අපි මිනිසාගේ ආරම්භය පවා කෘෂිකර්මාන්තයනේ. කෘෂිකර්මාන්තේ සමබර වුණොත් සමාජය සමබර වෙනවා. එතකොට අපේ පවුල, සමාජයේ වැදගත්ම දේ කුටුම්බය, පවුල. පවුල සමබර වෙන්න ඕනි. අපි කතා කරමු ඉස්සරහට පවුල කොහොමද සමබර වෙන්නේ කියලා. පවුල සමබර වුණොත් සමාජය සමබර වෙනවා. සමාජය සමබර වුණොත් රාष्ट्र. රාष्ट्र කියන්නේ රට. රට සමබර වුණොත් ලෝකය. ඉතින් අර පුංචි තැනින් පටන් අරගෙන තමයි ඉහළට යන්නේ. परिवार का संतुलन कैसे हो सकता है? परिवार का संतुलन, मैत्री की भावना, पति पत्नी का रिलेशन, जैसे मिट्टी और बीज का जो रिलेशन है वो सही हो तो खेती सही है, वैसे ही पति पत्नी का जो रिलेशन है वो सही हो, मैत्री की भावना हो तो संसार, घर सही है, घर सही है तो समाज सही है, और समाज सही है तो देश सही. ඔව්. පවුල සමබර කරන්නේ කොහොමද? ඇත්තටම දැන් පවුලක් කිව්වම සැමියා හා බිරිඳ. ඔවුන් දෙදෙනා අතර තියෙන සමබරභාවය, ප්‍රේමය. ඇත්තටම දැන් පස සහ බීජ අතර තියෙන සමබරභාවය. ඒ විදිහට තමයි මේ පවුල සමබර කර ගැනීම සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ ආකාරයෙන් අපි අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ සමාජය. ඇත්තටම මේ පවුලේ සමබරභාවයට ප්‍රේමය, ආදරය, කරුණාව, මෛත්‍රිය, සමාව දීම මේ වගේ සියලුම ගුණාංග අන්තර්ගතයි. පවුලෙන් මේවා ආරම්භ කරොත් තමයි අපිට මේවා ලෝකයට ගෙනියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම තවත් එතුමා සඳහන් කළා මේ ගොවියාගේ පෞරුෂය සංවර්ධනය කිරීම පිළිබඳ. අපි ඒ ගැන තව ටිකක් විස්තර කතා කරමු. किसान का पर्सनैलिटी का संतुलन हम जरा बात करेंगे. हाँ, किसान की जो पर्सनैलिटी है उसके पहले उसकी परिस्थिति क्या है उसके ऊपर महत्वपूर्ण है. उसका शिक्षण यानी संस्कार, संस्कृति लेके धीरे धीरे बढ़ता है अनुभव के द्वारा. लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनती है कि जो करना चाहता है नेचर के नियम के अनुसार वो खेती करता है, लेकिन उसके अपोजिट स्थिति में आ जाता है, यानी विरुद्ध दिशा में परिणाम मिलता है, तब संतुलन किसान का बिगड़ता है. और जब किसान का जो संतुलन बिगड़ता है तब घर, समाज में उसका बदल आता है. महत्वपूर्ण जो है एजुकेशन की आवश्यकता होती है. एजुकेशन किसान को मिल जाता है तो फैमिली, खेती, समाज, देश अच्छा होगा. ये तो पर्सनैलिटी.
पर्सनैलिटी का, व्यक्तित्व का जो अर्थ होता है, आंतरिक विकास और बाह्य विकास, यही किसान का व्यक्तित्व है। ඇතරම ගොවියා තමයි කෘෂිකාර්මික සංස්කෘතියේ ප්‍රධාන සලකුණ. ගොවියා කියලා කිව්වහම අර සම්ප්‍රදායික ගොවියා නෙමෙයි. අධ්‍යාපනයෙන් යුතු ගොවියා ගැන ඔහු කියනවා. අධ්‍යාපනය කියලා කියන්නේ පොතපතේ අධ්‍යාපනයේ පමණක් නෙමෙයි. ආචාර ධර්ම, ගුණධර්ම. ගුණධර්ම සහ පොතපතේ අධ්‍යාපනයේ දෙකම ඇති වුණාම තමයි ගොවියාගේ සමබර බව ඇති වෙන්නේ. එවිට එය බලපානවා අපේ කෘෂිකර්මාන්තයට වගේම සමාජයටත්. ඒ වගේම මේ සංවර්ධනය අභ්‍යන්තර බාහිර දෙකෙන්ම සිදුවිය යුතුයි. बायोटेक्नोलॉजी आपकी फाउंडेशन का और एक है ना, ट्रेडिशनली होममेड नेचुरल प्रोडक्ट्स, गृह आश्रित पारंपरिक निष्पादन, आपके फाउंडेशन के माध्यम इन सब का विकास कैसे हो सकते हैं? इसमें जो है टेक्नोलॉजी पूरा विज्ञान है और होममेड सिद्धा कृषि का जो मूल उसमें उद्देश्य है कि किसान की जो बाजार के ऊपर जो चीज़ें हैं उस पे उसका डिपेंडेंसी कम हो मार्केट के ऊपर, जिससे उसके जो खर्चा है, खेती में आता है खर्चा, वो कमी आए। सबसे पहले हमने जो सर्वे किया तो देखा कि यदि हम 10 रुपये मान के चलें तो 6 रुपया किसान का मार्केट से चीज़ें लाने में जाता है। तो सिद्धा कृषि में ये है कि उस 6 रुपये को और कम कैसे किया जाए ताकि वो सेविंग्स में कन्वर्ट हो जाए, किसान को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ में आ जाए। तो इस तरह से जो टेक्नोलॉजी है कि जो खाद बनाने का है या दवाई बनाने का कार्य है, या मिट्टी में जैसे नाइट्रोजन हमें बढ़ाना है, ये सॉल्यूशंस हम सस्ता जो होता है, कम से किफ़ायती उसमें, तो उसके लिए ये बायोटेक्नोलॉजी यूज़ होता है और जो हमें नेचर से आसपास चीज़ें मिल जाती हैं उसका यूज़ करके उनको बताया जाता है। ඔහු සඳහන් කරා මේ ගොවියාගේ වියදම අඩු කර ගැනීම පිළිබඳ. ඇත්තටම දැන් ඉන්දියාවේ වගේම අපේ රටෙත් ගොවියෝ තමන්ගේ අස්වැන්න විකුණ ගන්න බැරුව, ණය ගෙවා ගන්න බැරුව දිවි නසා ගන්නවා. ඉතින් ඔවුන්ගේ මේ යෝජනාව මේ ගොවියාගේ ණය අඩු කරගන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. මම අනුරාග් මහත්මයාගෙන් මේ ගැන අහන්න කැමති කොහොමද ඔවුන්ගේ පදනම ඔස්සේ මේ ගොවියාගේ ණය අඩු කරන්න සහාය වෙන්නේ කියලා. मैं आपसे पूछना चाहती हूँ किसान का खर्च कम करना वो कैसे हो सकता है? Happiness of a farmer is very important for a happiness of the nation. Whatever business everybody does it for benefit. Everybody looks for benefit. Even farmer looks for benefit because he has to bring up his family. So we did a survey. On an average, about 60% of the farmer's income goes back into the market in purchasing the products like fertilizer, medicines, seeds. So in Siddha Krishi, focus is focusing more on how this 60% can be reduced so that it becomes a savings for the farmer. So Siddha Krishi brings solutions which are purely natural and resources are easily available in the surroundings around only, so that farmer does not have to depend too much on the market. So when this 60% comes down to 20%, that 40% becomes the savings for the farmer. So that's how it brings down the cost. जी. लेकिन महत्वपूर्ण जो है, कृषि खेती वाले जो करते हैं, लेकिन बात ये हो है कि तब भी खेती में प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा, क्योंकि मार्केट में जो पैसा है 60% पैसा जाता है। इसके कारण उत्पादन जो होना चाहिए उत्पादन नहीं होता है। मिट्टी धीरे धीरे पीएच लेवल ना के बराबर हुई है, और पीएच लेवल जब मिट्टी में नहीं रहती है तब उत्पादन नहीं होता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा जो है मार्केट पर भरोसा है
जो हमारे घर पे खेती में है उसका स्वयं के पर भरोसा नहीं है। जो हमारी परंपरागत जो खेती यानी सिद्धा कृषि जो करते हैं उस पर हमारा भरोसा नहीं होता है। उसके कारण क्या हो रहा है, बिना कष्ट किए हुए वो हमें चाहिए। इसके कारण मिट्टी में सबसे ज़्यादा कठिनाई आ रही है, यानी हार्डनेस आ रहा है मिट्टी में। मतलब बंजर बाद में होती बाद है, में हार्डनेस होते। यानी बिल्कुल कठिनाई, जैसे सॉफ्टनेस नहीं, हार्डनेस आ हाँ। रहा है। जैसे यानी हम ट्रैक्टर चलाते हैं तब भी मशागत जो होती है भूमि की वो उतनी नहीं हो रही, ज़्यादा देर लग रहा है, यानी कड़ापन आ रहा है भूमि में। कड़ापन आ रहा है यानी टॉक्सिस उसमें मिट्टी में है। उसमें बैग में जो है जो फर्टिलाइज़र बैग में लिखा रहता है 20-80 लिखा रहता है, जिसमें फॉर्मेट है 00, 17-17, 18-18, 26-26, ये फॉर्मेट में खाद में आता है। 20-80 का मतलब होता है 20% पौधे को मिलता है, 80% मिट्टी में ही रहता है, यानी टॉक्सिस उसी मिट्टी में जमा है। अब जो टॉक्सिस मिट्टी में जमा है तो धीरे धीरे 80% जो टॉक्सिस है वो कहाँ जाएगा, तो मिट्टी को कमजोर करेगा। जैसे उदाहरण के स्तर पर हम देखा जाए, जैसे हमने भोजन किया और भोजन करने के बाद हमारा पेट ही सही नहीं है, तो गैसेस, एसिडिटी, गैस ट्रबल, माइग्रेन, अब ये जो सारी चीज़ें मेरे जीवन की पद्धति पर असर करती है। वैसे ही टॉक्सिस जब मिट्टी में पड़ा है तो वो मिट्टी में असर करेगी। मिट्टी सही नहीं है तो बीज का जो उत्पादन होना चाहिए वो भी सही नहीं है। बीज और मिट्टी सही है तो उत्पादन सही है। तो आर्थिक लेवल से हम देखें इसका तो समझ लिया जाए उदाहरण स्तर पर एक बात यह होती है कि हमने जो पैसा उसमें मिट्टी में डाला है तो उत्पादन उदाहरण के स्तर पर यहाँ 15 क्विंटल हुआ है, यानी 60% मैंने मार्केट में डाला, उससे 15 क्विंटल उत्पादन हुआ है। और उदाहरण स्तर पर इसमें देखा जाए सिद्धा कृषि का उत्पादन 8 क्विंटल हुआ है, तो खेती वाला ये देखेगा कि 15 क्विंटल मेरा धान निर्माण हुआ है, यहाँ 8 क्विंटल धान निर्माण हुआ है पहले बेस में। लेकिन बात यह है कि 8 क्विंटल और 15 क्विंटल में ये हमें फर्क लगता है, लेकिन पैसा यहाँ नहीं लगा है, पैसा वहाँ लगा है 15 क्विंटल में। अब जब 15 क्विंटल में जब पैसा लगा है तो मेरे जेब से गया है, 8 क्विंटल में मेरे जेब से नहीं गया, लेकिन मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो 8 क्विंटल का जो भाव है वो डबल है मार्केट में, और 15 क्विंटल का जो भाव है इसमें डबल नहीं, सिंगल भाव है। जो समझिए 200 रुपये चावल है, ये 400 रुपये चावल है, इतना डिफरेंट है। तो ये गणित व्यवहार दर्शन देखा जाए तो 8 क्विंटल 16 क्विंटल होता है, और 60% हमारे बचे हैं, तो प्रॉफिट हमारा। जब प्रॉफिट हमारा है तो सिद्धा कृषि ये जो प्रोसेस है, ये जो पद्धति है जो परंपरागत, ये हमें अपने परिवार, हमारे जो परिवार का एजुकेशन, हमारी जो सोसाइटी और हमारा देश और जो फूड जो समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या नहीं है, इसको सही कर सकता है। और यहाँ श्रीलंका को नहीं, दूसरे देश को भी भोजन यानी अनाज दे सकता है। खेती वाले सरी का कोई दाता नहीं, अन्नदाता वही है। सबसे बड़ा नेचर का जो काम करता है वो खेती वाला करता है। खेती वाला उत्पादन नहीं करता है तो हम क्या खाएंगे? प्लास्टिक चावल, प्लास्टिक सब्जी, जो नेचर के विरुद्ध है। तो ये ध्यान रखिए कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं है।
और नेचर के नियम के अनुसार हमें कृषि करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये आपका हमारा सभी का चिंतन का विषय। ඔව් පස නිසරු වීම කාලයක් යනකොට කෘෂි කර්මාන්තයේදී පස නිසරු වෙනවා. එතකොට කොහොමද නිෂ්පාදනය වැඩි කරගන්නේ? ඉතින් ඔවුන්ගේ විසඳුම ඒටත් මේ පරිසරය තුළින්ම තමයි ඔවුන් විසඳුම් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔවුන්ගේ පදනම හරහා මේ සියලුම ප්‍රශ්න ඇත්තටම අපේ රටටත් මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. මේ ඔවුන්ගේ පදනම හරහා මේ වගේ විසඳුමක් දීලා මේ ආහාර ප්‍රශ්නය විසඳන්න අපේ රටවල් වල විතරක් නෙමෙයි මුළු ලෝකෙම ආහාර ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් තමයි ඔවුන්ගේ පදනම හරහා ලබා දෙන්නේ. खेती पुराती नहीं, इसके लिए सुसाइड केसेस है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा। आत्महत्या हो रही है, कर्जा बढ़ रहा है, घर की समस्या बढ़ रही है। खेती वाला जो है वही समझ सकता है कि मैं कैसे जी रहा हूं, दूसरा नहीं समझ सकता। मेरी आर्थिकता सही नहीं है तो मेरा मेंटल सही नहीं है, मेंटल पीस भी बराबर नहीं है, तो मेरा घर कैसे होगा, मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगा, आने वाले खर्चों को कैसे ये करूंगा, मैं घर को कैसे सही करूंगा। तो इसके पीछे ये होता है कि मेरा अर्थशास्त्र कैसा है। तो समाज में जो हो रहा है, भारत में भी और श्रीलंका में भी सुसाइड केसेस है, लेकिन इसके पीछे क्या है, बारिश आती है, खेती बह जाती है, मैं बोता हूं, उत्पादन नहीं होता है, तो मेरा एक बिजनेस है और मैं बिजनेस के पीछे लगा हूं क्योंकि मेरा विश्वास है कि मार्केट जो खेती होती है फर्टिलाइजर की वो सबसे अच्छी होती है, लेकिन उसके पीछे तणनाशक हम मारते हैं, दवाई का उपयोग करते हैं, तो किडनी प्रॉब्लम, शुगर प्रॉब्लम दिनों दिन बढ़ रहे हैं, हाई बीपी, लो बीपी दिनों दिन बढ़ रही है, थायराइड प्रॉब्लम दिनों दिन बढ़ रहे हैं, गैस ट्रबल, डाइजेशन प्रॉब्लम दिनों दिन बढ़ रहे हैं। देश की समस्या ये सबसे बड़ी है। इस समस्या से कैसे उबर सकते हैं? दूसरा यह है कि मेरी खेती चौपट हो गई है, तो फिर मैं क्या करूं? हम अनाज बोते हैं, अनाज बोने के बाद निकालते हैं, लेकिन हम दूसरे को जीवन नहीं दे रहे, दूसरे को बीमारी दे रहे। एक जो प्रोडक्ट निकलता है हमारी खेती से, वो हमारे जीवन पर प्रभाव लाता है। समझिए ये प्रभाव दूसरे पर लाता है, लेकिन हमारे जीवन में क्या लाता है? दिनों दिन हमारा जो उत्पादन कम हो रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे खेती भी नष्ट हो रही है। खेती समाप्त हो जाए तो हमारे पास क्या है? तो उसको बोलते दूसरा बिजनेस, जोड़ धंधा। यानी जोड़ धंधा यानी जोड़ धंधा यानी जो गाय पालन है, गो पालन है, मच्छी पालन है, कुक्कुट पालन है, बकरी पालन है, ये इसका जोड़ धंधा बोलते हैं। फ्रूट है, सब्सिडी है सरकार से। अब ये जो सारी चीज़ें आती है, ये खेती वाले को मिले तो हमारा सबसे बड़ा खेती का जो प्रोडक्ट है ये भी उन्नत होगा और हमारे बिजनेस में और प्रगति होगी, जो जोड़ धंधा होना चाहिए। तो खेती में एक ही धंधा नहीं, दूसरा भी बिजनेस हो, धंधा हो, तब हम अपनी खेती सही कर सकती है। यही सिद्धा कृषि समाज संतुलन और पर्यावरण संतुलन, ये दोनों को बैलेंस करती है। ඇතරම ස්වභාවික විපත් නිසා ගොවියාගේ අස්වැන්න හානි වෙනවා. එතකොට ඔහුට සිය දිවි නසා ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඔහුගේ අදහස තමයි මේ ගොවිතැන හැරුණාම ඒකට විසඳුමක් විදිහට වෙනත් විකල්පයක්. ඒ කියන්නේ පශු පාලනය, සත්ව ඇති කිරීම වගේ උපදෙස් ඔවුන් ගොවියන්ට ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් ඔවුන්ගේ පදනමේ අර්ථය තමයි මේ සමාජයේ නගා සිටුවීම, ගොවියා නගා සිටුවීම. මේ හැමදේම සිද්ධ වෙන්නේ මේ පරිසරයත් සමග සමබරතාවය ඇති කර ගැනීමෙන්.
සිද්ධ කෘෂි සංකල්පය පිළිබඳ අපි බොහෝ දේ කතා කළා. ඔවුන්ගෙන් අපිට බොහෝ අවවාද උපදෙස් දෙනුම් සම්භාරයක් ලැබුණා. ඉතින් ඉදිරියේදී තව දුරටත් අපි මේ පිළිබඳ ඔබට කියන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් ඉතින් අදට සමුගන්නට අවසරයි.